Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today is 14th June 2021. Let's start the Economic Times analysis. The first news given on page number first. Accounts of three FPIs owning Adani shares frozen. Right? Firstly, understand the meaning of words used in this headline. Such as FPI's shares, right? What do you mean by FPIs? You all have often read in newspaper the term FDI, FPI and FII. So what do you mean by these words? So firstly we will take the FPI, foreign portfolio investment. Foreign portfolio investment is a short-term investment, right? Such as investment in shares and bonds, acquisition of assets, etc. Right? There is no role in active management and decision making. That is called foreign portfolio investment. And FDI is exactly its opposite, right? FDI is foreign direct investment, is any investment made by a foreign country in any existing company of other country or by setting up a subsidiary, right? FDI is a long-term investment. Here investors gain effective power in the company, role in the management and decision making, right? So third one is FII, foreign institutional investors. These are an investor or a group of investors who bring the FPI, right? It is the way through which FPI is made into a country. For example, insurance company, mutual funds, banks, pension funds, right? अगर सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझते हैं कि जो FPI है वो अगर कोई भी इन्वेस्टर सीधे शेयर्स में और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है तो वो FPI होता है, राइट? और FDI का मतलब होता है कि वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, राइट? जैसे कोई कंपनी सेटअप कर देगा हमारी कंट्री में आके, जो हमें दिखेगा और डायरेक्टली दिखेगा, और जो FPI है वो इनडायरेक्टली होता है, ठीक है? तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. जो FII होता है वो होता है जो FPI को लेके आता है, उसको लाने वाला FII होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट, shares. What do you mean by shares? Shares refers to the units into which the total share capital of a company is divided, right? Thus a share is a fractional part of the share capital and forms the basis of ownership interest in a company, right? The person who contribute money through shares are called shareholder, right? Here I have used the term share capital. Share capital is the amount contributed by several persons, right? शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स देखो, शेयर्स जैसे कोई कंपनी है, अब जो कंपनी है दैट डज नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल, जो पर्सन्स होते हैं वो उसमें अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट? तो जो भी मनी उन पर्सन्स के द्वारा उसके लिए उस कंपनी में कंट्रीब्यूट की जाती है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, राइट? तो जो शेयर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स, राइट? नाउ सी दिस न्यूज़ में क्या है इसमें, ठीक है? दिस न्यूज़ सेज National Securities Depository Limited (NSDL) has frozen the accounts of 3 foreign funds: Albula Investment Fund, Cresta Fund and APMS Investment Fund, which together own over 43,500 crore rupees worth of shares in 4 Adani Group companies, right?
ये बोल रहा है कि जो NSDL है उसने 3 फॉरेन फंड्स के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। कौन कौन से हैं वो फंड्स? अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रिस्टा फंड और APMS इन्वेस्टमेंट फंड है। ठीक है, तो जो 4 अडानी ग्रुप्स है वो है अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी टोटल गैस। और इसको क्यों फ्रीज किया है, इसका जो रीज़न है वो भी इन्होंने दिया है कि बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बेनिफिशियल ओनरशिप एज पर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग इज द कन्वर्टिंग ऑफ ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी, राइट। एंड सेकेंड रीजन इज द बिकॉज ऑफ इनएडुकेट बेनिफिशियल ओनरशिप डॉक्यूमेंटेशन, राइट। अब ये फ्रीज करना क्या होता है? एन अकाउंट फ्रीज मीन्स द फंड्स वुड नॉट बी एबल टू सेल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज नोर बाय न्यू वंस। मतलब जो भी अकाउंट फ्रीज होता है तो वो जो फंड होता है वो ना तो सिक्योरिटीज को खरीद सकता है ना बेच सकता है। ठीक है, तो नाउ सी द नेक्स्ट न्यूज़। NARCL sponsor Canara to put in up to 12% equity. Here, what is this NARCL? What do you mean by this? Right? Here the full form of this NARCL has been given in this news. The National Asset Reconstruction Company Limited. Right? ये आपने बजट में पढ़ा ही होगा। NARCL इज़ अ बैड बैंक, राइट। बैड बैंक क्या है? जो बैंक्स का जो NPA होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट की जो प्रॉब्लम होती है उसको जो है उसको सॉल्व करने के लिए ही ये NARCL एस्टेब्लिश करने की बात बजट में हुई थी। तो ये वही वाला बैड बैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़ में ये दिया है कि कैनरा बैंक विल बी द लीड स्पॉन्सर एंड बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कंट्रीब्यूटिंग अप टू 12% इक्विटी टू इट एज द स्टेट लेड बैड लोन एग्रीगेटर्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज अमेंडेड टू कंप्लाई विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूल्स, राइट। ये बता रहा है कि जो कैनरा बैंक है वो NARCL का लीड स्पॉन्सर और बिगेस्ट शेयर होल्डर होगा, 12% इक्विटी कंट्रीब्यूट करने वाला। ठीक है, तो जो RBI के नॉर्म्स हैं उन पे ये कैनरा बैंक ठीक बैठता है, तो उस वजह से भी। ठीक है, तो नेक्स्ट एक न्यूज़ यहाँ पे है, स्टॉक मार्केट स्केलिंग द वॉल ऑफ वरीज। इसमें कुछ नहीं है पर बस कंपैरिजन है कुछ कंट्रीज़ का और उनके इंडेक्सेस का। ठीक है, उनकी इंडेक्सेस की परफॉर्मेंस को लेकर है। ठीक है, तो नथिंग इज स्पेशल इन दिस न्यूज़, राइट। नाउ कम टू द पेज नंबर 12. Here the term is liquid fund. What do you mean by this liquid fund? Liquid fund वो होते हैं जिनको आप कैश में easily convert कर सकते हैं। ठीक है, that is called liquid funds. But news is not important, so we will not talk about this, right? Come to page number 14, right. Here a term has been used that is important economic term. जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये क्राउडिंग आउट द क्रिप्टो क्राउड, राइट। ये जो क्राउडिंग आउट है ये एक इकोनॉमिक टर्म है जो इकोनॉमिक्स में यूज़ होती है और इसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट करके यूज़ होता है। ठीक है, तो बट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट term, so I will explain this with
diagram, with the help of diagram in separate video. So here I will tell only the meaning of crowding out effect, right? ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है और उसकी वजह से जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो वही क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, अगर हम इसको ऐसे समझे डिटेल में कि जब कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट के होते हुए जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है। जो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ जाता है, बट इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से जो है इनकम नहीं बढ़ता है, तो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से मनी डिमांड कम हो जाता है और मनी डिमांड के कम होने से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। जब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम अच्छे से इसको समझेंगे, वो हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे, तो उसके लिए मैं एक अलग से अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी, तो फिर हम उसे वहाँ करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू। See you tomorrow with next lecture.